start the recording and I'm also sharing the screen. ठीक है? If it is visible, just let me know. Screen is visible? Yes. थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइड कर दीजिए सर, टॉप की तरफ। Now it is fine. हाँ ठीक है ठीक। Sure. ठीक है. Okay. So, Nipun, we have discussed BIM terminologies. If you remember, in the first class we discussed BIM terminologies like LOD क्या होता है, ठीक है, लेवल ऑफ डिटेल क्या होती है, और we discussed class detection क्या होता है, and then we discussed common data environment as well, some of the definitions, AIR EIR documents क्या होते हैं, appointing party, what do you mean by appointing party, appointed party, lead appointed party, right? These were the things which we discussed. These were the terminologies, right? So now we will we will discuss that what are the standards. See, try to understand when we design some, when we design building or any other thing. So we have, what do you say, IS codes, right? Or certain guidelines or frameworks. कुछ भी चीज आप डिजाइन करोगे, कुछ भी चीज आप whether it is electrical design, whether it is structural design, you need to follow certain guidelines, certain standards, or you can say codes. Similarly, when we talk about BIM के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, देयर आर कोड्स एज वेल फॉर BIM, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो यू नीड टू फॉलो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग codes, right? When you design electrical things, you need to follow electrical codes. When you design hydraulic structures, you need to follow different codes for them. Similarly, जब हम BIM का काम करते हैं तो we need to follow certain, you know, standards और guidelines. ठीक है? उनमें सबसे मेजर जो है, the most prominent among all those is International Standards Organization, ISO, right? ISO 19650. These are the don'ts and do's, uh, which I have already explained you. If you have any questions, you can ask in the last, or you can interrupt me in between as well if you have a relevant question. Okay. And I want your active participation for the next 30 minutes. This was the recap from the last session, right? We have covered all those things. AIR, EIR, BIM execution plan, class detection, common data environment, appointing party, EIR, LOD, project information model, master information delivery plan, task information delivery plan, RACI, responsibility matrix and all, right? So आज हम क्या देखेंगे? Today we'll discuss stages of ISO 19650, RIBA definition, RIBA stages, RIBA versus American Institute of Architects, right? Levels of BIM maturity, BIM tools. कौन कौन से BIM tools हैं जो यूज होते हैं, ठीक है ना? So, and in the last we have a small quiz as well. So you need to be careful while in the lecture, ठीक है ना? थोड़ा सा केयरफुल होके सुनना है, ठीक है? आपको ध्यान देना है, right? You should be very careful because in the last we will be having a quiz, small quiz. So International Standards Organization 19650, कभी भी आपसे कोई भी during an interview, if anybody is going to ask कि हम कौन सा कोड यूज करते हैं BIM प्रोजेक्ट्स में, तो आपको बिल्कुल एक्टिवली ये जवाब देना है कि we need to follow 19650, ISO 19650, right? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 19650, दिस इज द मेन कोड, ठीक है? इससे पहले बहुत सारे कोड थे पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशंस, यूके का अलग कोड था, यूएसए का अलग कोड था, ठीक है? यूरोपियन कंट्रीज अपना अलग फॉलो करते थे, इटली में लोग अपना अलग फॉलो करते हैं, बट जब से ये आया है वी नीड टू फॉलो दिस सेंट्रली. ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी कंट्री में कहीं पर भी हम होंगे वी नीड टू फॉलो दिस, ठीक है? अगर हम अपने लोकली अपने कंट्री का भी फॉलो करना चाहते हैं देन इट इज ओके, अदरवाइज ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है,
पूरी दुनिया में हम इसको फॉलो कर सकते हैं एंड नोबडी इज गोइंग टू चैलेंजेस, राइट। हाँ ये जरूर, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, जैसे इटली, व्हेन यू गो टू इटली, यूएसए और यूके, दे हैव देयर ओन लोकल फ्रेमवर्क्स और गाइडलाइंस, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट इंटरनेशनली नोबडी इज गोइंग टू चैलेंज यू। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज आईएसओ? इट इज अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, okay, which define the common unified framework for the effective collaboration, production and management of information across the full life cycle। कुछ नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है, बेसिकली गाइडलाइंस है कि कभी भी हमें किसी प्रोजेक्ट में अगर बिम इम्प्लीमेंट करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर्टेन गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क्स एंड कोड्स, ठीक है ना। हम कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट। क्रिएशन ऑफ आईएसओ 19650 सीरीज कब क्रिएट हुआ था, कैसे किया, किसने किया था, कहाँ पे क्रिएट हुआ था? तो इट वाज बेसिकली एस्टेब्लिश्ड, यू नो, स्टैंडर्ड्स बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ ने बनाया। द स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड फ्रॉम यूके, नाउ सुपरसीडेड। पहले क्या होता था, प्रायर कमिंग टू आईएसओ, यूके के अंदर पीएएस, ये देखो यहाँ पर पीएएस लिखा हुआ है, पीएएस मैं चैट में लिखता हूँ। पीएएस कुछ नहीं होता, पीएएस होता है पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशंस, पब्लिकली अवेलेबल, अवेलेबल स्पेसिफिकेशंस, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो पहले जब आईएसओ नहीं था, उससे पहले यूके के अंदर पीएएस हुआ करता था 1192, उसके काफी सारे पार्ट्स थे, 1192, 207, 1192, 2013, 2014, 15, इस तरीके से। बट आईएसओ जब आया तो उसको, व्हाट आई वुड से, आईएसओ सुपरसीडेड दी पीएस। सुपरसीड मतलब उसको अब हम यूज नहीं करते हैं, वो सुपरसीड हो गया, वो बंद हो गया है, काइंड ऑफ, राइट। अब उसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम जो यूज करते हैं वो आईएसओ को यूज करते हैं, राइट। ट्राइड एंड टेस्टेड बीम इंफॉर्मेशन एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस इन 2007। आईएसओ sought to adopt and elevate this standard to an international level, right? So ISO series was developed by ISO Technical Committee 059 SC 13 with consultation from an international panel of industry expert and associations. This included 31 participating in countries and 14 observing countries, right? जो आईएसओ जब बनाया गया तो थ्रू आउट द वर्ल्ड सब लोगों से राय लिए गए, मतलब एक पैनल बनाया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें देर वर 31 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 31 कंट्रीज थे, एंड जो ऑब्जर्विंग कंट्रीज थे वो 14 थे। कौन कौन थे, आई शो यू जस्ट नाउ। सी, इफ यू लुक एट दिस मैप, यू सी सेक्रेटेरियल, सेक्रेटेरिएट नॉर्वे में है इसका ऑफिस आईएसओ का, ठीक है। Participating members 31 थे, these were the participating members, these blue one, China, Russia, USA, Canada, Brazil, Argentina, Australia and European countries, right? Observing members 14 थे, India was the observing members, you see legend आप यहाँ पर देखोगे, this is slightly saffron color, saffron in color, so these were the observing countries, Saudi Arabia, Egypt, right? This I do not know which country is this, but this is I think Argentina, or Brazil or Argentina, and Indonesia, small countries over here. Bangladesh is also there, right? So these were the observing members, जिन्होंने जस्ट ऑब्जर्व किया, मे बी पार्टिसिपेट नहीं किया, इन्होंने जस्ट अपना प्रेजेंस वहां पर रखी। पार्टिसिपेशन मीन्स जिन्होंने अपना कुछ योगदान दिया, कुछ एड ऑन किया, कुछ रिकमेंडेशंस बताएं कि नहीं इसमें ये होना चाहिए, इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए, कमेटी मेंबर्स, राइट। सो इनका ऑफिस सेक्रेटेरिएट है वो नॉर्वे में है, यहाँ पर आईएसओ का, ठीक है। मेन ऑफ So basically ISO have 6 parts, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट में कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल के बारे में बात करता है. पार्ट सेकंड टॉक्स अबाउट डिलीवरी फेज ऑफ एसेट्स, राइट. देन वी हैव part third talks about operational phase of assets. Part 4 talks about information exchange. Part 5 is all about security minded approach to information management, right? And part 6 is health and safety. As of now, currently we only have 5 parts. Part 6 is under preparation. Okay, you can say part 6 is under preparation. So currently we have only 5 parts. पहले पार्ट में कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल के बारे में बात होती है. सेकंड पार्ट जो है वो डिलीवरी फेज ऑफ एसेट्स के बारे में बात करता है. ठीक है, जब डिलीवरी होती है एसेट्स की उस फेज के बारे में. पार्ट थर्ड जो है वो ऑपरेशनल फेज. बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, पहले बिल्डिंग प्लान हुई, फिर डिजाइन हुई, फिर कंस्ट्रक्शन हुई, हुआ कंस्ट्रक्शन होने के बाद नाउ बिल्डिंग इज इन ऑपरेशनल फेज. सो उस वक्त में जो कोड हमारा यूज होगा वो पार्ट 3 होगा, ऑपरेशनल फेज ऑफ एसेट्स. पार्ट 4 में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. हमें जब फाइल्स एक्सचेंज करनी है, डेटा एक्सचेंज करना है, कुछ फाइल्स आपको सबमिट करनी है, कुछ फाइल्स आपसे लेनी है, सो हम कौन सा पार्ट यूज करेंगे, पार्ट 4 आईएसओ का. ठीक है. पार्ट 5 सिक्योरिटी माइंडेड अप्रोच टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. जो भी इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है वी शुड बी माइंडफुल कि हमें वो कहीं लीक नहीं करनी है, डेटा ब्रीच नहीं करना है, डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है. सो वी नीड टू फॉलो पार्ट 5 सिक्योरिटी माइंडेड अप्रोच टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप किसी किसी को भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, कोई भी उसमें आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है. नो, इट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंशियल. ठीक है ना. डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी एट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. पार्ट 6 हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात करता है, बट इट इज येट टू बी लॉन्च्ड. अभी वो प्रोग्रेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी अंडर प्रिपरेशन है. और जब बन जाएगा तो वो आ जाएगा, बट अभी है नहीं वो. आई मीन इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज अंडर प्रोग्रेस यू कैन से, राइट. तो 6 पार्ट्स हैं. आप कह सकते हो इफ एनीबडी इज गोइंग टू आस्क हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, यू कैन से कि 5 पार्ट्स अभी एक्टिव हैं, 6 पार्ट इज अंडर प्रिपरेशन. ठीक है. नाउ स्टेजेस इन आईएसओ 19650. देखो, कोई भी प्रोजेक्ट जब आप करते हैं निपुण एंड वेद, जब कोई प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते हैं या फिर ये कह दीजिए कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया एंड यू वांट टू इम्प्लीमेंट बिम इन दैट. ठीक है ना. तो वो प्रोजेक्ट अगर आप आईएसओ फॉर्मेट के हिसाब से करते हैं, यू नीड टू फॉलो दीज 8 स्टेजेस. ठीक है. जैसे आप अपने, अगर लेट्स से यू टेक एन एग्जांपल ऑफ योर ओन प्रोजेक्ट, जो आप जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो उसमें कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होती होंगी कि पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा, राइट. फिर जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलेगा वो अपनी टीम को मोबिलाइज करेगा एंड देन दे विल स्टार्ट वर्क. फिर वो माइलस्टोन वाइज अपनी सबमिशंस देगा, फिर वो हैंड ओवर करेगा, जस्ट लाइक दैट. ठीक है. इसी तरीके से जब हम बिम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं, and for example you are adopting ISO 19650, आप अपने प्रोजेक्ट में बिम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू फॉलो 19650. ठीक है. तो आपको उस प्रोजेक्ट को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. यू नीड टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इनटू 8 स्टेजेस. व्हाट आर दोज 8 स्टेजेस? सबसे पहले असेसमेंट एंड नीड होती है. क्लाइंट असेस करता है कि मुझे क्या करना है, what I exactly want from BIM. मुझे BIM implement क्यों करना है, whether I just want to have 3D modeling or I want to use it for 4D 5D 6D 7D लेवल तक करना है. ठीक है. वो अपनी असेसमेंट करता है एंड वो प्रिपेयर करता है अपनी नीड. फिर वो वहां पर एम्प्लॉयर्स इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट प्रिपेयर करता है. ठीक है. उसके बाद वो टेंडर इनवाइट करता है स्टेज 2 में. ठीक है. कौन करता है? क्लाइंट. अभी क्लाइंट का काम चल रहा है यहाँ पर. ठीक है ना. पहले क्लाइंट ने असेस किया एंड देन दे आर गोइंग टू प्रिपेयर अ टेंडर और ईआईआर डॉक्यूमेंट एंड देन दे आर गोइंग टू कॉल द टेंडर, इनवाइट द टेंडर्स. ठीक है. उसके बाद जब क्लाइंट ने टेंडर इनवाइट किया, फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूं एंड यू आर द बिडर, आप क्या करेंगे, टेंडर को पढ़ेंगे एंड यू आर गोइंग टू रेस्पॉन्ड द टेंडर. ठीक है. इफ यू आर इंटरेस्टेड
इन वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यही प्रोसेस होता है जनरली। ठीक है ना, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं दे आर गोइंग टू बिड फॉर दैट टेंडर, उनकी बिड आती है, बिड इवेल्युएशन होता है, एंड आफ्टर द इवेल्युएशन जो भी कॉम्पिटेंट बिडर होता है उसको काम अवार्ड हो जाता है। राइट, दिस इज द प्रोसेस। सो उसके बाद टेंडर रेस्पॉन्स आपने दिया, टेंडर रेस्पॉन्स के बाद आई विल एनालाइज योर टेंडर, एंड इफ आई थिंक दैट यू आर कॉम्पिटेंट एनफ आई विल अपॉइंट। तो अब क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा, कंफर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको काम अवार्ड कर दिया। ठीक है, अवार्ड करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है कॉन्ट्रैक्टर का, वो क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब आप सिंस यू आर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड तो आप मोबिलाइजेशन उसको समझते हो कि भाई वहाँ पे मशीनें लेके आ गया, वहाँ पर साइट साइट का साफ सफाई कर दी, शुरू कर दी, और वहाँ पर अपना जो है लेबर के लिए कैंप लगाया, एंड देन दे हैव सेट अप अ स्मॉल ऑफिस। दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट विथ कंस्ट्रक्शन। बट अगर आप डिजाइनर हैं, आपकी कंसल्टेंसी है, तो आप मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे, आप मोबिलाइजेशन ऐसे करेंगे, आप कुछ एडवांस देंगे एंड देन यू विल प्रोक्योर सम सॉफ्टवेयर, आप कंप्यूटर प्रोक्योर करेंगे, या फिर हो सकता है आपको कुछ नई हायरिंग करनी है, तो आप अपना ऑफिस सेटअप करेंगे, हायरिंग करेंगे, एंड देन यू गोना परचेज सम सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट, मशीन्स, प्रिंटर्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज मोबिलाइजेशन। ठीक है ना, मोबिलाइजेशन के कई तरीके का हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, किस फेज में प्रोजेक्ट है बेसिकली। वंस यू मोबिलाइज द टीम, ठीक है, आपने काम करना शुरू किया, एंड देन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग ड्राइंग्स। अगर वो डिजाइन का कंसल्टिंग कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट है, आप इफ यू आर अ कंसल्टेंसी, दैट मीन्स आप डिजाइन ड्राइंग्स प्रोड्यूस करेंगे एंड देन सबमिशन करना शुरू करेंगे। एंड इफ यू आर वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर, दैट मीन्स आप अपना जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको स्टार्ट करेंगे, एंड देन अपने जो भी माइलस्टोन्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल माइलस्टोन वन में आपने कोई टनल बनाना है, रिपेयर करी कुछ कुछ किलोमीटर्स की या कुछ मीटर्स की, एंड देन सेकंड फेज में आपने उसकी लाइनिंग करनी है, थर्ड फेज में सपोर्ट सिस्टम लगाना है, लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट फेज में भी हो सकता है आपको टेंडर ड्राइंग का और मे बी स्टडी ड्राइंग्स प्रिपेयर करने हैं, देन सेकंड स्टेज में आपको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग प्रिपेयर करने हैं। ठीक है ना, थर्ड स्टेज में फाइनल ड्राइंग आपको प्रिपेयर करना है। सो सिक्स्थ स्टेज में यू आर प्रिपेयरिंग द डिलीवरेबल्स, बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस है यहाँ। फाइनली इन सेवंथ स्टेज आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है, और आप पूरे मॉडल्स जितने भी होते हैं, 3D मॉडल्स होते हैं, 3D मॉडल्स, 2D ड्राइंग्स होती हैं, वो सब आप 4D मॉडल्स, 3D मॉडल्स, 5D, 4D, सारे मॉडल्स यू आर गोइंग टू सबमिट टू योर क्लाइंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मॉडल डिलीवरी हो रही है, दैट मीन्स यू आर डिलीवरिंग द मॉडल योर क्लाइंट। एंड एट्थ स्टेज में प्रोजेक्ट क्लोज आउट होता है, जो आपको हैव यू एवर हैंडेड ओवर एनी प्रोजेक्ट, निपुण? कभी प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है? हेलो निपुण, क्या सीसी रेलवे कभी आपने प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है? किया, इधर किया है। हाँ, तो उसमें कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं, फिर उनसे आप आपको देते हो, वो सारे चेक करते हैं, चेक लिस्ट होती है, फिर वो उसको ओके करते हैं, एंड देन दे गिव यू अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, है ना, इसी तरीके से कुछ होता है ना। फिर लेसन लर्न होते हैं, उसमें क्या गलतियां हुई, क्या सुधार हुआ, क्या क्या हमने सीखा, क्या आगे करेंगे इम्प्लीमेंट, लाइक दिस। वो एक पूरी रिपोर्ट टाइप बनती है। चेक ठीक है, चेकलिस्ट बनाते हैं। हाँ, चेकलिस्ट होती है, वो चेक करता है क्लाइंट, वो अच्छी तरीके से सारी चीजों को चेक करके देन ओनली दे गिव यू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑल। ठीक है, तो ये स्टेजेस होते हैं, दीज आर द 8 स्टेजेस बेसिकली। आप ये माने, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें आप बिम को इम्प्लीमेंट अगर कर रहे हैं, तो यू हैव टू हैव फॉलो दीज 8 स्टेजेस। इन 8 स्टेजेस के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपका काम सही होगा। नोबडी इज गोइंग टू चैलेंज। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, बट दिस इज अ काइंड ऑफ एक तरीका, जैसे होता है ना, एक दिस इज अ वे, ऑर्गेनाइज्ड वे। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और आप अपने तरीके से, देसी तरीके से करेंगे, जिस तरीके से मन चाहेगा वैसे करेंगे, तो देर विल बी कंफ्यूजन, देर विल बी लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड ऑल। बट इफ यू फॉलो दिस पाथ, जी। तो ये आपका एक ऑर्गेनाइज वे में काम कंप्लीट होगा। राइट,
अब यहाँ पर देखो, नीचे लीजेंड है, ठीक है ना, लीजेंड, अपॉइंटिंग पार्टी, दैट मीन्स दिस ब्लू, लीड अपॉइंटेड पार्टी, दिस बिग ब्लू बार, ठीक है ना, अपॉइंटेड पार्टी, दिस ग्रीन बार। इसका मतलब ये है कि अपॉइंटिंग पार्टी का काम यहां से लेके यहां तक हुआ, उसके बाद बीच में अपॉइंटिंग पार्टी का काम खत्म हो गया। देन अगेन फिर अपॉइंटिंग पार्टी का काम यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ, स्टेज 4 और 5 में, एंड देन अगेन 7 और 8 में, ठीक है। बट लीड अपॉइंटेड पार्टी का काम यहाँ से शुरू होता है, टेंडर रेस्पॉन्स से, एंड देन इंफॉर्मेशन मॉडल डिलीवरी तक होता है, ठीक है। दिस इज दी, समझ में आ रही है बात? समझ गया ये है, आपकी बात। ये कौन, ये मेन है जनरल कॉन्ट्रैक्टर हो गया। हाँ एग्जैक्टली, लीड अपॉइंटेड पार्टी जनरल कॉन्ट्रैक्टर है आपका, और अपॉइंटेड पार्टी भी, उसका भी स्कोप ऑफ वर्क इतना ही है जितना लीड अपॉइंटेड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट सेम स्कोप ऑफ वर्क है, ठीक है। दैट मीन्स स्टेज 3 से लेके और स्टेज हमारी 7 तक, इसमें काम जनरल करने, कॉन्ट्रैक्टर और सब। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, दैट मीन्स याद है, तुमने उसको पढ़ा है ना। और ये हमारा हो गया क्लाइंट, यहाँ से लेके स्टेज 1 से स्टेज 2, देन स्टेज 4 से स्टेज 5, देन स्टेज 7 से स्टेज 8। अब आप कहोगे सर 7 8 में क्यों? भाई एग्जैक्टली जब हैंड ओवर करोगे तो क्लाइंट को ही करोगे ना, प्रोजेक्ट हैंड तो ओवर क्लाइंट ही करोगे तो लेगा। क्लाइंट को करोगे। हाँ, तो इसलिए क्लाइंट का स्कोप यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, बीच में भी रहा, शुरू में भी रहा। सबसे पहले क्लाइंट ने बताया कि मुझे ये चाहिए, फिर जनरल कॉन्ट्रैक्टर ने उसको बना के दिया कि जी सर मैं तैयार हूँ, उसने कहा ठीक है आओ काम करो, तो क्लाइंट फिर से पिक्चर में आ गया, उसने काम शुरू किया यहाँ से, ठीक है। एंड देन क्लाइंट बीच में फिर थोड़ा गायब हो गया जब उसने ड्राइंग्स वगैरह सबमिट की, बट फाइनली जब फाइनल होने वाला था उससे पहले डिलीवरी लेने के लिए आया और अपना हैंड ओवर ले लिया, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके, मूविंग अहेड। चौहान जी कौन है, चौहान जी करके जो आ रहे हैं। चौहान जी हैं हमारे नावेद सर। देखो, अब अगेन वही सेम ग्राफ है निपुण, यू शुड बी माइंडफुल हियर, आपको समझना है, ठीक है, ध्यान से। असेसमेंट एंड नीड, ये स्टेजेस लिखी हुई हैं ऊपर, दीज आर द स्टेजेस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि कौन सा कोड, अभी हमने ऊपर कोड्स पढ़े ना, वी हैव जस्ट स्टडीड 5 कोड्स आर देयर, ठीक है। तो उन्होंने बताया है पहला कोड हम किस किस फेज में यूज करते हैं, जी। ठीक है। फर्स्ट स्टेज से लेके और फोर्थ स्टेज तक वी विल यूज कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल स्टेज 1, आई मीन पार्ट 1। पार्ट 2 हम कहाँ से कहाँ तक यूज कर सकते हैं, 4 5 6 7 स्टेज तक। पार्ट 3 हम यूज करते हैं हाफ ऑफ द 6th स्टेज, 7th एंड 8th। पार्ट 4 इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, 6 7 8 स्टेज में, ठीक है। इसी तरीके से सिक्योरिटी माइंडेड अप्रोच 6 7 8 स्टेज में, ठीक है। तो ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन स्टेज वर्सेस स्टेज, आई मीन कौन सी स्टेज में कौन सा कोड यूज होगा, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर सीखने वाली, वो ये है कि OIR PIR ये सारी चीजें डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ठीक है ना। तो कौन सी डेफिनेशन किस पर्टिकुलर स्टेज में यूज होगी, किस पर्टिकुलर केस में यूज होगी, ठीक है। जैसे कि अपॉइंटमेंट के टाइम पर, अगर आपको याद होगा, अपॉइंटमेंट जब होती है तो अपॉइंटमेंट में वो बीईपी बनाता है कौन, जनरल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। दो बीईपी बनाता है, एक तो प्री अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, जो टेंडर के टाइम सबमिट करता है प्री अपॉइंटमेंट। उसके बाद जब टेंडर अवार्ड हो जाता है, उसके बाद वो डिटेल्ड क्या बनाता है, बीईपी डॉक्यूमेंट बनाता है, देखो ये लिखा पोस्ट अपॉइंटमेंट बीईपी, ठीक है। फिर मोबिलाइजेशन होता है, मोबिलाइजेशन में हमें ड्राइंग्स प्रिपेयर करनी होती हैं, एलओडी किस लेवल की डिटेल, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, अलग अलग लोग अलग अलग मॉडल बना रहे होते हैं, ठीक है, सब अपना सबमिट कर रहे होते हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज में एलओडी, मतलब और भी हाई लेवल की ड्राइंग बनती है, थोड़ा और ज्यादा डिटेल ऐड हो जाती है उसमें, ठीक है। उसके बाद सेवंथ स्टेज में एलओडी 400, यानी और भी ज्यादा डिटेल्ड ड्राइंग बनती है, ठीक है। फिर ये हमें मॉडल डिलीवरी का टाइम आता है। दैट मीन्स हमारा मॉडल बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए एलओडी यहाँ पर 400 हो जाता है, राइट। उसके बाद जब प्रोजेक्ट क्लोज आउट होता है तो एलओडी 500 होता है, दैट मीन्स एज बिल्ट ड्राइंग। अब आपका प्रोजेक्ट तैयार है और आपने फिर से ड्राइंग बनाई उसकी, क्योंकि आपने देखा होगा जो हम प्लान करते हैं एग्जैक्टली वो नहीं बन पाता है, ड्यू टू सम चेंजेस, ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स। साइट पे अगर हमने कुछ एक एग्जैक्ट फिगर बनाई थी तो साइट पे थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो एज बिल्ट ड्राइंग और एज बिल्ट मॉडल हम प्रिपेयर करते हैं, सो दैट बाद में कंफ्यूजन ना रहे कि हमने तो ये ड्राइंग दी थी लेकिन आपने ये बनाया। तो फॉर दैट रीजन ओनली वी प्रिपेयर द एज बिल्ट मॉडल एंड एज बिल्ट ड्राइंग्स, ठीक है। क्लियर है। रीबा प्लान ऑफ वर्क। रीबा कुछ नहीं है। रीबा क्या है? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। ये ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट एक प्लान ऑफ वर्क है जो यूएसए में यूज होता है, यूके में यूज होता है, सॉरी, ठीक है, यूके में। जैसे हमने अभी देखा कि हमारा आईएसओ किसी भी प्रोजेक्ट को 8 स्टेजेस में डिवाइड करता है, ठीक है। सिमिलरली रीबा प्लान ऑफ वर्क भी किसी भी प्रोजेक्ट को कितनी स्टेजेस में डिवाइड करता है? 8। देखो, 0 स्टेज में क्या होता है? उसकी डेफिनेशन होती है। स्टेज 1 में क्या होता है? ब्रीफ होता है उसके बारे में, ब्रीफ। स्टेज 2 में कॉन्सेप्ट डिजाइन होता है। स्टेज 3 में डेवलप डिजाइन होता है। स्टेज 4 में टेक्निकल डिजाइन। स्टेज 5 में कंस्ट्रक्शन। सिक्स्थ में हैंड ओवर। सेवंथ में ऑपरेशनल। बिल्कुल सिमिलर उसी वे में समझो कि जैसे हमने आईएसओ को फॉलो किया, 8 स्टेजेस थे उसमें। द ओनली डिफरेंस इज कि उसमें स्टेज 1 से शुरू हो रहा था एंड 8 तक जा रहा था, ठीक है। इसमें 0 से शुरू हो रहा है एंड इट इज गोइंग अप टू 7। लेकिन टोटल नंबर कितने हैं? वो 8 ही है। देखो, जी। ध्यान दो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेजेस हैं, लेकिन वहां पर नंबर 0 से शुरू हो रहा है एंड 7 तक जा रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर है। वहां पर लास्ट नंबर क्या था? ऑपरेशनल था। उससे पहले हैंडओवर जी। था, क्लोजिंग था, ठीक है। उससे पहले वहां पर प्रोडक्शन था, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ये इट इज समथिंग रिलेटेड टू द डिजाइन डेवलपमेंट, बट वो जो एप्लीकेबल है आपका वो कंस्ट्रक्शन में भी एप्लीकेबल है एंड आपका डिजाइन कंसल्टेंसी में भी एप्लीकेबल है। इट इज मोर ऑफ डिजाइन वाला पार्ट। जैसे आपको डीपीआर बनानी है तो उसमें सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। फिर उसका प्रिपरेशन एंड ब्रीफ बताना है। फिर उसका कॉन्सेप्ट डिजाइन होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है जब आप बिल्कुल शुरू में बनाते हो कोई भी चीज। फिर आप आफ्टर द अप्रूवल आप उसका डेवलप डिजाइन बनाते हो और बेटर करते हो। और जब उससे अप्रूवल हो जाता है तो फिर आपकी फाइनल अप्रूवल के बाद आप उसका टेक्निकल डिटेल इंजीनियरिंग करते हो एंड डिजाइन करते हो। फिर आप कंस्ट्रक्शन के लिए इशू करते हो ड्राइंग्स एंड देन हैंड ओवर करते हो जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और हैंड ओवर के बाद क्या होता है? वो यूज में आती है चीजें। तो रीबा प्लान ऑफ वर्क किसी भी प्रोजेक्ट को 8 स्टेजेस में डिवाइड कर देता है, और वो 8 स्टेजेस ये होती हैं: स्ट्रेटेजिक डेफिनेशन, प्रिपरेशन एंड ब्रीफ, कॉन्सेप्ट डिजाइन, डेवलप डिजाइन, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं। रीबा की फुल फॉर्म, रीबा प्लान ऑफ वर्क क्या होता है? वो किसी भी प्रोजेक्ट को 8 स्टेजेस में डिवाइड करता है। वो 8 स्टेजेस अगर आप याद कर पाओ तो याद कर लो, और नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पर यूज नहीं होता है, ये यूके में यूज होता है। बट क्योंकि ये बिम के हाँ हाँ। कंटेक्स्ट में आता है तो मैंने सोचा कि आपको पढ़ा दूं, सही रहेगा।
अब देखो, रीबा प्लान ऑफ वर्क 2013, एंड इधर है हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, AIA। क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अभी जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, प्रिपरेशन एंड ब्रीफ, कंसेप्ट डिजाइन, डेवलप डिजाइन, टेक्निकल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ये उसकी स्टेजेस हैं। ठीक है, 7th स्टेजेस। और यहाँ पर LOD है। तो LOD वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से आया। ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने दिया। LOD 100, 200, 300, 400, 500, याद होगा मैंने एक पिक्चर दिखाई थी बिल्डिंग की, ठीक है ना। LOD 100 में बहुत कम डिटेल होती है, 200 में थोड़ी ज्यादा डिटेल होती है, 3 में ज्यादा, 400 में ज्यादा, 5। वो बताया था ना एग्जाम्पल की, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। याद है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाला। हाँ, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। दैट मीन्स कितनी हम डिटेल उसमें दे रहे हैं, कितनी लेवल ऑफ डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो मोटा मोटी दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें लेवल ऑफ डिटेल होती है, और ये 100 से 500 तक जाता है। रीबा प्लान ऑफ वर्क में हमारे पास स्टेजेस होती हैं, जो कि 0 से शुरू होकर 7 तक जाती है, टोटल 8 स्टेजेस होती है। ठीक है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, और ये मेजर है, थोड़ा सा या पता होना चाहिए हमें कि भाई कोई एकदम से पूछता है AIA क्या होता है, तो हमें वी शुड नो। और रिवर प्लान ऑफ वर्क क्या है, तो वो हमें पता होना चाहिए कौन सा कहाँ एप्लीकेबल है। ये बेसिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड चलता है ना। USA वाला, ये सिर्फ कन्फाइंड है UK के लिए। ठीक है, लेवल्स ऑफ बिम मेच्योरिटी। रीबा जो है, रीबा सिर्फ यूके में चलता है, एआईए सारे वर्ल्ड में चलता है, हाँ। हाँ, AIA जो है वो बेसिकली इट्स वेरी सिमिलर टू ISO। ISO क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो ISO के अंदर भी लेवल ऑफ डेफिनेशन ही का कॉन्सेप्ट चलता है, रीबा का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि AIA जो है वो लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड नाउन है। ठीक है, LOD का कॉन्सेप्ट आप, कोई भी आपसे पूछेगा तो LOD पूछेगा, रीबा तो शायद ही कोई पूछेगा। कोई UK की कंपनी हुई, उसमें आप इंटरव्यू दे रहे हुए तो बात अलग है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बिम के ना मैच्योरिटी लेवल होते हैं, मतलब मैच्योरिटी लेवल एक टर्म है, इसको ऐसे समझ लो कि जैसे हमने लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल बनाए बिम के। ठीक है, 0 से लेके 3 तक। ठीक है, उन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। राइट, क्या डिफरेंस है? अगर आप सिर्फ 2D ड्राइंग में काम करते हैं, कोई 3D मॉडलिंग नहीं करते, तो उसको हम लेवल 0 बिम कहते हैं। ठीक है, जो कि हम करते हैं हिंदुस्तान में अभी ज्यादातर, हम अपना ड्राइंग से ही काम करते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स आती हैं वहां पर साइट पर, उसको देख के हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो दैट मीन्स हम लेवल 0 में काम करते हैं मैक्सिमम। लेवल 1 क्या होता है? लेवल 1 में 3D और 2D का मिक्सचर होता है। ठीक है, 2D ड्राइंग्स भी होती हैं, उसमें 3D मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन वो 3D मॉडल्स इंटेलिजेंट मॉडल नहीं होते, मतलब उनके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सर नहीं सर, हम तो लेवल 1 में काम करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट हमारा 3D मॉडल बना के देता है हमें, हमें वो दिखाता है कि हमारी बिल्डिंग कैसी दिखेगी, एलिवेशन वगैरह बना के दे देता है। तो आई वुड से कि ठीक है यार, मान लिया हम लेवल 1 में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेवल 2 क्या होता है? लेवल 2 में सब लोग अपने अपने मॉडल बनाते हैं, जो जिसको हम बिम कहते हैं एक्चुअल में। ठीक है, जैसे चौहान साहब अलग हैं, ठीक है, उन्होंने अपना मॉडल बनाया, निपुण ने अपना मॉडल बनाया, परवेज ने अपना मॉडल बनाया। सबने अपने अपने मॉडल बनाए, किसी ने MEP का मॉडल बनाया, किसी ने रैबिट का मॉडल बनाया, किसी ने स्ट्रक्चर का मॉडल बनाया, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन वाला मॉडल बनाया, जैसे हम रैबिट में बनाते हैं, टेक्ला में बनाते हैं। ठीक है, तो वो जब अब हम अपने अपने मॉडल बनाएंगे तो वो हम बोलेंगे लेवल 2, बिम का लेवल 2 है वो। और लेवल 3 क्या है? लेवल 3 हाईएस्ट लेवल है अभी तक। एक सेंट्रल फाइल होती है, ठीक है, उस सेंट्रल फाइल पे आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, चौहान साहब भी काम कर रहे हैं, सब एक साथ काम कर सकते हैं। क्लाउड का बताया था ना, क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, एक जगह में बैठे बैठे स्कैन हाँ, कर देना। आप ऋषिकेश में हो, मैं दिल्ली में हूँ, चौहान साहब हरियाणा में, कहीं भी बैठ के हम अपना काम कर रहे हैं, क्लाउड में सेव हो रहा है वो ऑटोमेटिकली। आपने जो काम किया, आपने बंद किया सिस्टम, मैंने ओपन किया, मुझे लेटेस्ट चेंजेस दिख जाएंगे। तो कोई भी हम
काम कर रहे हैं, एक सेंट्रल मॉडल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी में हम जुड़े हुए हैं, अपने अपने मॉडल बना रहे हैं, सेंट्रल मॉडल पे काम कर रहे हैं, और हम रियल टाइम में कनेक्टेड हैं। इसको हम कहते हैं लेवल 3। ठीक है, समझ में आ गई बात? लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये क्या है ना सर, एक बार जब दोबारा जब रिवीजन करते हैं ना, जब लिख लेता तो मैंने रजिस्टर बना लिया उसके लिए प्रॉपर, उसमें सब लिख रखा है, तब मुझे और अच्छे से रिवाइज होकर समझ में आने लगता है सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, रिवाइज करना जरूरी है। हाँ भाई। देखो वही लेवल ऑफ विम स्टेजेस, उसी को दोबारा से इस फॉर्म में समझाने की कोशिश करिए कि स्टेज 0 में तो कुछ ये पैरामीटर्स हैं हमारे, इन पैरामीटर्स पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इन पैरामीटर्स पे हम चेक कर रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, स्टेज 0 में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, स्टेज 1 में ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, सिर्फ ये लास्ट के 3 नहीं होते और एक बीच का ये नहीं होता। ठीक है, स्टेज 2 में ये सारे होते हैं, लेकिन लास्ट के 3 नहीं होते। और स्टेज 3 में, यानी कि लेवल 3 में, विम लेवल 3, सारी चीजें होती हैं और ये पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको यहाँ पर अंदाजा लग जाएगा जब आप इसको डिटेल में देखोगे आराम से कि ये है क्या, समझने की कोशिश करोगे लेवल विम क्या होता है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद विम टूल्स। हाँ, देखो बिम में ना दो तरीके के टूल्स यूज करेंगे हम। ठीक है, एक होता है बिम ऑथरिंग टूल, एक होता है नॉन ऑथरिंग टूल। ऑथरिंग टूल मतलब वो होता है जिसमें हम कुछ डिजाइन करते हैं, कुछ मॉडल करते हैं, कुछ बनाते हैं स्क्रैच से। फॉर एग्जाम्पल ऑटोकैड, आप ऑटोकैड में आप ड्राइंग बनाते हो, जीरो से बनाते हो। ठीक है, तो कुछ आप प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ ड्राइंग बना रहे हो। इसी तरीके से रैबिट है, रैबिट में आप 3D मॉडल्स बनाते हो। ठीक है, टेक्ला है, टेक्ला स्ट्रक्चर्स के आप उसमें 3D मॉडल जनरेट करते हो। तो ये सब क्या है, ऑथरिंग टूल है, जिसमें हम कुछ बनाते हैं। और नॉन ऑथरिंग टूल वो है जिसमें हम बनाते नहीं है, बल्कि जो बना हुआ है उसका ही यूज करके हम उसमें कुछ एनालिसिस करते हैं। जैसे नेविस वर्क्स है, नेविस वर्क्स में हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है ना, सॉलिबरी मॉडल व्यूवर है, उसमें हम क्या करते हैं, ट्रेविट के मॉडल को, टेक्ला के मॉडल को उस नेविसवर्क्स के अंदर लाते हैं और उसमें अपना काम जो करना होता है, क्लैश डिटेक्शन करना है या फिर कोऑर्डिनेशन करना, जो भी करना है हम उसमें कर लेते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ऑथरिंग में और नॉन ऑथरिंग में। जैसे कि देखो, यहाँ पर रेविट है, ऑटोकैड है, सिविल 3D है, ये सारे क्या हैं, ऑथरिंग टूल्स हैं। इन ऑथरिंग टूल्स में हम बनाते हैं, लेकिन नेविसवर्क्स में हम कुछ बनाते नहीं है, इसमें सिर्फ हम वो मॉडल्स को यूज करते हैं। तो नेविसवर्क्स हमारा नॉन ऑथरिंग है। ठीक है, और ये सारे हमारे ऑथरिंग है इधर के। ठीक है, समझ में आ गई बात? हेलो निपुण, समझ क्या में है? आ गई? ऑथरिंग आ और रही है, नॉन। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, नॉन ऑथरिंग और ऑथरिंग क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है सर। ठीक है, बस इतना ही है आज की क्लास में, इसको और अच्छे से रिवाइज कर लो। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सॉफ्टवेयर की होगी। ठीक है, उससे पहले इंस्टॉल करवाने हैं और उसके बाद हम फिर सॉफ्टवेयर पे मूव करेंगे। मैं आपको खुद भी कहने वाला था कि मुझे नींद हो जा रही है, नींद बहुत भयंकर। ठीक है ठीक है, बस हो गया, मैंने कर दिया, इसीलिए मैं समझ गया। मैं आप मीटिंग भी ऑफ होने वाली है। तो इसलिए चलो। एक आर्ट चल, की रिकॉर्डिंग भेज देना तो मैं हाँ रिकॉर्डिंग भेज दे जवाब रहा हूँ मैं, जब भेज दे रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। थियोटिकल का हो